everyone, welcome back to my channel. Myself Rakhi Sharma. Today we are going to discuss about the conservatism after 1815 and the revolutionaries. Now, as we have discussed in previous video about how the middle class emerged and that middle class helped in creating the idea of liberal nationalism. जैसे कि हमने पढ़ा था what was liberal nationalism? तो liberal nationalism was an ideology or philosophy that believes in nationalism or follows the idea of liberty, equality, fraternity और individual rights. तो अब आप देखेंगे कि ये conservatism भी क्या है? एक ideology है. Now you must be thinking, in previous video हमने एक ideology को पढ़ा था, that was liberal nationalism. Then how a new ideology came? So let's see. Napoleon Bonaparte was defeated at Waterloo in 1815 by European powers. Now, Napoleon Bonaparte से पहले जैसे आप जानते हैं, Louis XVI थे, उसके बाद अब Maximilian Robespierre है, from the very successful club that is Jacobin Club, and for a very short period of time उसके बाद एक directory government आई, and then Napoleon Bonaparte came in power in 1804. But he was defeated at Waterloo, and Waterloo is in Belgium. तो वो Waterloo में defeat हुए थे in 1815 by the European powers. Now European powers include Britain, Russia, Prussia and Austria. तो ये जो powers हैं वो collectively उन्होंने defeat किया Napoleon Bonaparte को, and then अब क्या होगा? When Napoleon Bonaparte was defeated, तो who will be the next king? तो what will be the rule? And क्या government होगी? कैसे सारी economic policies बनेंगी? तभी एक नई ideology आई, that was conservatism. Now what is conservatism? Conservatism is a philosophy or ideology that stresses on the importance of tradition, culture and custom and prefer to have slow changes rather than a quick change. तो आप कह सकते हैं conservatism एक ideology है जो old tradition को follow करता है और बहुत slow changes के साथ आगे बढ़ता है. तो now as Napoleon was defeated, conservatism की ideology आ गई, तो वो slow changes चाहते हैं old tradition. Now old tradition में हमारे aristocrats थे and monarch थे. तो monarch kingship rule था, तो modernization can strength monarchy. Now Napoleon, as you know, he was a very ambitious person. उसने बहुत सारी war की थी and he has conquered many areas. तो उसकी वजह से उसने state को क्या बना दिया था? Modernize बना दिया था. तो मॉडर्नाइजेशन के स्ट्रेंथ monarchy. तो कंजर्वेटिज्म के लोग जो कंजर्वेटिव्स थे आपके monarch and the aristocrats, they started thinking कि modernization can strengthen the monarchy. अब modernization से हमारी जो monarch system है वो strengthen हो सकता है, और उन्होंने ये भी सोचा अब हमारे पास क्या है, एक modern army आ गई है, efficient bureaucracy आ गई है, means हमारे official जो officers हैं अब वो क्या है, बहुत efficient and skilled है. अब feudal system भी हट गया. now you know feudal system जहाँ पे landlord impose the power and landlord give a land to a serf, और वो serf उनको कुछ services देनी पड़ती थी and they have also have to give a tax. तो ये हमने पढ़ा था. जो serfdom है, जो आपकी peasants है वो भी free हो गए. तो इसकी वजह से जो conservatism है, monarch and the aristocrats, they started thinking कि अब हमारी क्या होगी, हम monarch अच्छे से impose कर सकते हैं and there will be a more strengthened monarchy system will be there. तो इसी की वजह से एक treaty form हुई, that was an agreement. Agreement कहाँ हुआ? वियना में हुआ, and Vienna is in Austrian Hungary. तो that was called to be as Treaty of Vienna of 1815. जब नेपोलियन बोनापार्ट हार गए तो एक treaty form हुई, an agreement form हुआ at Vienna that is called to be Treaty of Vienna of 1815, जहाँ पे जो host थे वो ड्यूक मेटरनिक थे. ही वॉज एन ऑस्ट्रियन चांसलर, बिकॉज ये वियना के अंदर हो रहा था, ऑस्ट्रियन हंगरी के अंदर. तो जो उसके होस्ट थे वो ड्यूक मेटरनिक थे. ही वॉज ऑल्सो एन एरिस्टोक्रेट, monarch को ही फॉलो करेंगे. तो ही उसके बाद क्या होगा, जो भी एरियाज दैट वाज कंकर्ड बाय द नेपोलियन, वहाँ पे वो क्या इम्पोज कर देंगे, एक monarch इम्पोज कर देंगे. एंड यू विल ऑल्सो सी फर्दर इन अदर टॉपिक्स कि जो आपके नेपोलियन बोनापार्ट के अंदर लुइस फिलिप किंग बन जाएंगे जो बर्बन डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं. देखो बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर. अब नाउ यू मस्ट रिमेंबर, आपने 9th में पढ़ा था कि लुइस 16 बिलोंग्स टू बर्बन डायनेस्टी.
तो वो बर्बन डायनेस्टी थी, जो अब नेपोलियन, उसके बाद जैकोबिन क्लब आ गए, डायरेक्टरी गवर्नमेंट थी, एंड देन नेपोलियन की, तो वो बर्बन डायनेस्टी हट चुकी थी। लेकिन जब आपकी ट्रीटी फॉर्म हुई तो कंजर्वेटिज्म ने क्या करा, वापस से बर्बन डायनेस्टी को लिया, दैट वाज लुइस फिलिप, एंड फ्रांस लॉस्ट इट्स टेरिटरीज। अब नाउ फ्रांस कैसे लॉस्ट कर दिया, बिकॉज अब यू कैन से जो नेपोलियन बोनापार्ट था, ही हैज कॉन्कर्ड मेनी एरियाज, तो फ्रांस के अंदर भी उसने बहुत सारे एरियाज को फर्दर कॉन्कर किया था। लेकिन नेपोलियन वाज डिफीटेड बाय द यूरोपियन पावर्स, तो फ्रांस के जितने भी एरिया नेपोलियन ने कॉन्कर किए थे वो अब सब चले जाएंगे, और वो किसके पास चले जाएंगे, यूरोपियन पावर्स के पास चलेंगे। ठीक है, तो फ्रांस लॉस्ट इट्स टेरिटरीज, तो जो भी टेरिटरीज फ्रांस नेपोलियन ने ली थी अब वो सारी चली गई। एंड सीरीज ऑफ स्टेट्स, जो फ्रांस के अंदर सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज, जैसे दिस इज योर फ्रांस, तो फ्रांस के आसपास डिफरेंट सीरीज ऑफ स्टेट्स फॉर्म हुए। अब ये स्टेट्स इसलिए फॉर्म हुए ताकि फ्रांस क्या कर सके, अपने एरिया को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम द फॉरेन इन्वेजन, जो भी फॉरेन कंट्रोल करना चाहता है फ्रांस को। और उन्होंने ये भी सोचा कि फ्रांस को इन फ्यूचर वो क्या कर देंगे, अपना एम्पायर, ये जो छोटे छोटे बफर स्टेट्स बने प्रोटेक्ट करने के लिए, वो फ्यूचर में उसे क्या कर लेंगे, अपने अंडर कर लेंगे, एंड फ्रांस विल बी एक्सपैंडेड। ओके, तो नाउ यू विल आल्सो सी कि नॉर्थ में जैसे मोनार्क आ गया तो वेरियस टेरिटरीज वर आल्सो इंक्लूडेड, तो नॉर्थ में नीदरलैंड्स वाज इंक्लूडेड टू बेल्जियम, और इन साउथ जेनोआ वाज एडेड टू पिडमाउंट, एंड फ्रॉम ईस्ट रशिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, एंड वेस्ट में आप देखेंगे कि प्रूशिया was given to new territories। तो आपने देखा कि नीदरलैंड्स बेल्जियम के अंदर ऐड हो गया, जिनोआ पिडमाउंट के अंदर आ गया साउथ में, ईस्ट में रशिया was given to पोलैंड, एंड वेस्ट में प्रूशिया को न्यू टेरिटरीज मिल गई, और वो न्यू टेरिटरीज किसकी थी, पार्ट्स ऑफ द सैक्सोनी। ओके, तो ये दीज वर द एरियाज, जो फर्दर एरियाज को ऐड कर दिए गए, क्योंकि मोनार्क उनको इम्पोज करना था, अपनी पार्ट टेरिटरी को इंक्रीज करना था। लेकिन इन द एंड व्हाट डिड कंजर्वेटिज्म डिड, कंजर्वेटिज्म ने अपने रिजाइम्स बना लिए, अथॉरिटीज बना ली, जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे वो उनके अगेंस्ट एक्शन ले रहे थे। दैट्स व्हाई दे हैव इम्पोज सेंसरशिप, बिकॉज ऑल पीपल वर क्रिटिसाइजिंग द कंजर्वेटिज्म आइडिया, तो उन्होंने सेंसरशिप इम्पोज कर दिया। नाउ व्हाट इज सेंसरशिप, सेंसरशिप इज नॉट इज अ आइडिया या सिस्टम जहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं होती। यू कैन से व्हेन देयर इज नो राइट टू स्पीक, एक्सप्रेस, और जहाँ पे न्यूज़पेपर्स में नहीं बोल सकते, कोई बुक्स में वी कैन नॉट एक्सप्रेस, तो कंजर्वेटिज्म ने देन लेटर सेंसरशिप इम्पोज कर दिया। तो नाउ यू विल सी अनदर टॉपिक, दैट इज द रिवोल्यूशनरीज। नाउ एज यू नो, आपने पढ़ा लिबरल नेशनलिज्म के बारे में, कंजर्वेटिज्म के बारे में। कंजर्वेटिज्म इसलिए आया बिकॉज Napoleon Bonaparte was defeated, so now a new group of people come. Now what are the revolutionaries? The revolutionaries कौन people होते हैं? तो revolutionaries are that group of people that create action. अब वो action क्यों create करते हैं? To form any kind of change. They want any kind of change against the government. तो now ये revolutionaries आपके liberal nationalist हो सकते हैं, या कोई भी person जो सोसाइटी के अंदर चेंज लाना चाहते हैं। आप कह सकते हैं ये एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो उनको एजिटेटर भी कहेंगे, बिकॉज दे वांट चेंजेस। अब वो क्या चेंज चाहते थे, दे वांट टू अपोज मोनार्क एंड दे वांट टू फाइट फॉर फ्रीडम एंड इक्वालिटी। तो तभी उसकी वजह से एज कंजर्वेटिज्म आ गए हैं। अब वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कोई लिबरल नेशनलिस्ट मूवमेंट हो, बिकॉज दे डजंट वांट एनी काइंड ऑफ चेंजेस। तभी रिवोल्यूशनरीज आए और उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म होना कर दिया। सीक्रेट सोसाइटी ओरिजिनेट इन मेनी यूरोपियन स्टेट्स टू ट्रेन रिवोल्यूशनरीज। तो वो छुप के अंडरग्राउंड सोसाइटीज बनाने लग गए, सीक्रेट सोसाइटीज बनाने लग गए, ताकि इस आइडिया को वो ट्रेन कर सके लोगों को एंड स्प्रेड कर सके, लिबरल नेशनल मूवमेंट को एक्सपेंड कर सके। तभी देयर इज अ वेरी फेमस पर्सन या फेमस रिवोल्यूशनरिस्ट, दैट इज गिसेप्पे मज़ीनी। अब नाउ गिसेप्पे मज़ीनी इज अ रिवोल्यूशनरिस्ट, इटालियन रिवोल्यूशनरीज। वो इटली को यूनाइट करना चाहते थे। ही डजंट वांट कि नेशन सेपरेटली डिवाइड होंगे, और ही वांट्स कि एक सोसाइटी रहे जहाँ पे एक साथ रहे लोग। तो ही वाज एन इटालियन रिवोल्यूशनरी एंड ही वाज बोर्न इन जेनोवा in 1807.
तो वो जेनोवा में बॉर्न हुए थे एंड जेनोवा इज इन इटली। एंड एट द एज ऑफ 24, तो वो 24 साल की एज में ही वाज सेंट टू एग्जाइल इन 1831। तो वो उनको जेल में भेज दिया गया था लिंगुरिया के अंदर। व्हाई ही वाज सेंट टू जेल? बिकॉज उन्होंने क्या किया था, एक रिवोल्यूशन किया था। एट द एज ऑफ 24 he was sent to exile in 1831 for attempting revolution in Liguria। तो उन्होंने 24 साल की एज में 24 years of age उन्हें जेल भेज दिया गया था बिकॉज उन्होंने रिवोल्यूशनरी मूवमेंट किया था। एंड ही ऑल्सो फाउंड 2 सीक्रेट अंडरग्राउंड सोसाइटी दैट वाज यंग इटली इन मर्सेल। तो मर्सेल फ्रांस में है, आप जैसे जानते हैं, जैसे हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन में भी पढ़ा था। मर्सेल इज इन फ्रांस, जिसकी वजह से एक सॉन्ग आया था मर्सेलेस, कंपोज बाय द रॉजर दिलेसर। तो आपको याद होगा, तो यंग इटली इन मर्सेलेस वाज फॉर्म्ड बाय द गिसेप्पे मज़ीनी। और उन्होंने ये भी देखा यंग यूरोप एंड बर्लिन। तो 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, यंग इटली इन मर्सेलेस एंड यंग यूरोप एंड बर्लिन। Okay, then he believed that God had intended nation to be the national unit of mankind। तो उन्होंने क्या बोला कि वो बिलीव करते थे कि गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी द नेशनल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, कि जो हमारे गॉड ने लोगों को पीसफुली रहने के लिए, एक साथ ह्यूमैनिटी के साथ रहने के लिए सिखाया है। उन्होंने अलग अलग नहीं किया, सेपरेटली नहीं बनाया। तो हमें नेशनल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, तो हमें टुगेदर भी रहना चाहिए। इटली कुड नॉट बी अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स और किंगडम्स। तो इटली क्या होना चाहिए, स्मॉल किंगडम्स में या स्टेट्स में नहीं डिवाइड होना चाहिए, बट टू बी अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशन। द वाइडर अलायंस ऑफ नेशन मीन्स वेयर पीपल लिव टुगेदर एंड शेयर कॉमन प्रॉफिट्स एंड शेयर कस्टम्स एंड वैल्यूज। ओके, तो वो चाहते थे कि इटली क्या रहे, सेपरेट होके नहीं रहे, डिफरेंट किंगडम्स में नहीं रहे, बल्कि एक अलायंस के साथ, ग्रुप ऑफ नेशन के साथ रहे, जिसे हम नेशन स्टेट भी कहते हैं। ओके, नाउ ड्यूक मेटरनिक, नाउ एज यू रिमेंबर, हमने पढ़ा भी कंजर्वेटिज्म में कि ही वाज एन ऑस्ट्रियन चांसलर। तो कंजर्वेटिज्म के अंदर जो ड्यूक मेटरनिक है, तो अब एज गिसेप्पे मज़ीनी इज अ रेवोल्यूशनरी, वो उनको पसंद नहीं करेंगे। तो ड्यूक मेटरनिक ने मज़ीनी के बारे में ये बोला, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। तो उन्होंने रिमार्क दिया कि ये जो गिसेप्पे मज़ीनी है, ही इज नॉट गुड फॉर आवर सोसाइटी, बिकॉज जो गिसेप्पे मज़ीनी he wants changes, he wants to oppose the monarch system and want a national state। so that's why he commented Duke Metternich उन्होंने बोला कि डेंजरस एनिमी है वो सोशल ऑर्डर के। ना सोशल ऑर्डर क्या होता है, जो भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपके मोनार्क सिस्टम में बने गए हैं, तो उसे अपोज कर रहे थे। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड टू बी एज डेंजरस एनिमी। टिल देन, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।